کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بھجن پورہ میں مسجد عزیزیہ جس کو شہید کر دی گئی تھی اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت کسان تحریک میں شدت کس طرح آ گئی۔ جے پور اور آگرہ شاہراہیں اس وقت جام کرنے کی تیاری میں ہے کسان۔ ادھر روسی دفاعی نظام خریدنے کی پاداش میں امریکہ پوری طرح سے ترکی پر پابندی عائد کرنے کے لیے اتاولا ہوتا جا رہا ہے۔ ٹائم میگزین نے سال 2020 پر ریڈ کراس 100 سال میں 5واں موقع کس طرح آیا وہ بھی بتاؤں گا، اور بھی بہت ساری خبریں ناظرین کی کس طرح الگ الگ مقامات پر دھماکہ خیز مادے اور ہتھیارات برآمد کرنے کے پولیس کے دعوے۔ منی پور اور اودیشہ سے بنگال میں ایک مرتبہ پھر ٹی ایم سی کے کارکنوں پر حملہ ہوا ہے، تو وہیں پر RSS کے چیف اس وقت بنگال پہنچ گئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین۔ وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب سے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے ہم کچھ تصاویر کے حوالے سے خبروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک ایک خبر کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف NIA جانچ کی اپیل کو دہلی ہائی کورٹ نے اس وقت مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں، تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد صاحب کے خلاف NIA جانچ کی اپیل کو دہلی ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرضی گزار نے جانچ NIA کو منتقل کرنے کی اپیل کی تھی۔ واضح ہے کہ مولانا سعد صاحب پر لاک ڈاؤن کے دوران جانچ ایجنسیوں کے نشانے پر آئے تھے اور کئی معاملے میں ان کے خلاف اس وقت جانچ چل رہی ہے، بالخصوص مرکزی تبلیغی مرکز کو لے کر کے، اور کرونا وبا کے دوران میں وہاں پر بہت سارے اہم ترین الگ الگ مسئلے ان کے خلاف معاملے درج کیے گئے ہیں مولانا کے خلاف۔ اسی کی جانچ ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن چونکہ جانچ چل رہی تھی اسی درمیان میں عرضی گزار نے کہا کہ NIA کے تحت کیا جائے، لیکن اس وقت جو ہے کورٹ نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جس طرح جانچ جاری ہے اسی کو برقرار رکھا جائے، NIA کے حوالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین آئیے مغربی بنگال میں اس وقت بہت ہی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف RSS کے چیف موہن بھاگوت آج 2 روزہ دورے پر مغربی بنگال کے کلکتہ پہنچ گئے ہیں، جس کو لے کر کے الگ الگ تبصرے اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں کہ آخر اس وقت یہاں پر آرگنائزیشن کے آفس میں موہن بھاگوت کو بنگال کے انتخابات کے پہلے پہنچنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کس طرح کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہ تصویریں وائرل ہونے کے بعد جہاں پر سوشل میڈیا میں تبصرے ہو رہے ہیں، وہیں پر BJP کیا کچھ گل کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ لگاتار آپ لوگوں کے سامنے دن بدن سامنے آ رہی ہے۔ تصویریں دیکھیے، کل ہی کی یہ تصویریں کہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ایک TMC کے کارکن پر حملہ کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جہاں پر جو ہے آگزنی کا معاملہ پیش آیا، اور اس وقت TMC کے کارکن نے بتایا کہ وہ گھر کے باہر بیٹھی ہوئے تھے کہ جو ہے BJP کے کچھ کارکنان آئے اور اس پر جو ہے حملہ کر دیا اور آگزنی کی واردات پیش آئی۔ اور یہ اس طرح سے ناظرین الگ الگ طرح کی مغربی بنگال کے الگ الگ علاقوں سے TMC اور BJP کارکنان کے مابین جھڑپ ہونے، ایک دوسرے پر حملے کرنے کی خبریں صاف طور پر آ رہی ہے۔ ایسے میں موہن بھاگوت کا وہاں بنگال جانا، پھر اس کے بیچ میں جو ہے لگاتار BJP لیڈران کا وہاں جانا، اور الگ الگ طرح سے جو حالات یہاں بناتے جا رہے ہیں یا بن رہے ہیں وہ بہت ہی ہولناک اور خطرناک بنتے جا رہے ہیں۔ الیکشن سے اور انتخابات سے پہلے مغربی بنگال کی کیا تصویر نکل کر کے آتی ہے یہ کہنا بہت ہی دشوار ہے، لیکن ہر دن جو معاملے یہاں مغربی بنگال سے آ رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرناٹکا میں اس وقت KSRTC بس اور BMTC بسوں کے ملازمین لگاتار دوسرے دن ہڑتال پر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے عام عوام کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک کے شیموگا ضلع کی ہے، جہاں پر بس اڈے خالی نظر آ رہے ہیں اور عوام بھی نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ بھول کر پہنچ گئے ہیں ان لوگوں کو بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانے کے لیے بسیں نہیں ہیں۔ KSRTC بسوں اور
BMTC की बस के कारकुनान और मुलाजिमान इस वक्त बेंगलुरु में अपने अहम तरीन मुतालबात को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो उनको भी सरकारी महकमे के तहत जो सहूलियात दी जाती हैं उनको भी वही सहूलियात दी जाए, ये लेकर के जो इस वक्त कर्नाटक में KSRTC के और दीगर मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको दो और अहम तरीन ख़बरों की जानिब ले चलूँ। ये जो तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं ये उड़ीसा से आ रही हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हथियारात ज़ब्त कर लिए गए हैं। जी हाँ, ये जो हथियार आप देख रहे हैं जानलेवा हथियार, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि धलासमंत गैंगस्टर्स की जानिब से जो है उन लोगों की जानिब से ये हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिशें हो रही थी। उड़ीसा के कटक में इस वक्त जो है पुलिस ने छापामारी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर्स को और हथियारात ले जा रहे इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। बहुत बड़े पैमाने पर हथियारात और ज़िंदा कारतूस वगैरह बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने मज़ीद ज़्यादा तफसीलात नहीं दी हैं। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो इसके पीछे किसी गैंगस्टर का हाथ है जो इस तरह से जो है कटक से दीगर इलाक़ों में हथियारात पहुंचाने की कोशिशें हो रही थी। इस सिलसिले में मज़ीद जो है तफसीलात बयान करने की पुलिस ने बयान दिया है। वहीं पर नाज़रीन एक और हथियारात को सीज़ करने की ख़बर आ रही, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले से आ रही कुछ तस्वीर हैं जहां पर 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसमें खातून भी थी। आप यहां देख सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है अलग अलग तरह के वायर और डिटोनेटर्स और गोलियां और बहुत सारी चीज़ें और कुछ लेटर्स भी जो 15 की तादाद है, 35 लेटर्स जो डिमांड की लिखी हुई हैं उसको भी जो है ले लिया गया है। तो महसूस किया जा रहा है कि इस तरह से जो है बम का इस्तेमाल करते हुए, गोलियों का इस्तेमाल करते हुए कहीं इसको चिपका करके जो है कोई बड़ा मुतालबा रखने की कोशिश कर रहे थे मुलजिमों की जानिब से, और उसको जो है इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन, दोनों मामलात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ख़तरनाक हथियारात हैं। बहुत धमाका ख़ेज़ मादा है, डिटोनेटर्स हैं, गोलियाँ हैं, 0.32 mm के कारतूस जो ज़िंदे हैं उसको भी जो है ज़ब्त कर लिया गया। लेकिन आपने देखा कि किसी जो है नेशनल मीडिया में इसको हंगामा ख़ेज़ तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपको दिखाया गया हो, दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए कि अगर यहाँ पर नाम कुछ और होते मुलजिमान के तो फिर हंगामा मच गया होता। न जाने इसको कहाँ कहाँ तक मिला कर के पूरी एक मखसूस कम्युनिटी को बदनाम करने की मीडिया की जानिब से कोशिश होती। लेकिन इस खबर को दिखाना तो दूर की बात, एक छोटी सी लकीर भी नीचे जो है इस वक्त नेशनल मीडिया में नहीं दिखाई जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया इस वक्त कितना ख़तरनाक रूप इख्तियार कर चुका है कि जो है छोटी सी चीज़ को लेकर के मुसलमानों को बदनाम करने वाला इतने बड़े बड़े हथियारात, जिंदा कारतूस और बहुत सारी चीज़ें ज़ब्त कर ली जाती है और पुलिस उसको प्रेस रिलीज़ में सामने भी लाती है, लेकिन उसको दिखाने की कोशिश नहीं होती। नाज़रीन, आइए दहली फसाद की जद में आने वाली गामरी गांव भजनपुरा की अज़िया मस्जिद में कल नमाज जुमा से क़ब्ल एक इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जमीयत उलमा हिंद की सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी, जमीयत उलमा तमिलनाडु के सदर मौलाना मंसूर काशिफ़ी और दीगर ज़िम्मेदारान शरीक हुए। इमसाल फरवरी में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में होने वाली इंतहाई ख़तरनाक फसादात में अज़िया मस्जिद और उसमें मौजूद तमाम मजहबी अशिया को जला दिया गया था। फसादियों ने इस इलाके में एक 85 साल मुअम्मर खातून को भी नज़र आतिश कर दिया था। जमीयत उलमा इस इलाके में मस्जिद की तामीर के अलावा फसाद मुतासिरीन की कानूनी पैरवी भी कर रही है। अज़िया मस्जिद 170 स्क्वायर फीट के दायरे में 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसकी मरम्मत और तोसी का अमल जमीयत उलमा हिंद की ज़ेर एहतिमाम मुकम्मल हुआ है। उसके बाद कल इसकी इफ्तिताही तकरीब में यहाँ पर मुख्तलिफ़ उलमा इकराम शरीक हुए थे। नाज़रीन गिरामी, किसानों की तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जयपुर और आगरा की शाहराह जाम करने की यानी रोकने की इस वक्त जो है ब्लॉक करने की तैयारी जारी है। नए ज़रिए क़वानीन को लेकर किसानों हुकूमत में इख्तिलाफ़ात बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ जहां किसान क़वानीन को ख़त्म करने से कम पर रज़ामंद नहीं, वहीं मरकज़ी हुकूमत किसानों के इस मुतालबे को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसकी वजह से सूरत हाल ख़राब तर होती जा रही है।
अब किसानों ने फैसला किया है कि वो आज जयपुर और आगरा हाईवे जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा बलबीर यस राजेवाल ने कहा है कि वो आज यानी 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर रोड ब्लॉक कर देंगे और डिप्टी कलेक्टरों के दफ्तरों और बीजेपी रहनुमाओं के घरों के बाहर मुजाहरे करेंगे। इसके साथ ही वो टोल प्लाजा पर भी ब्लॉक करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि किसानों का ट्रेन रोकने का भी अभी तक फ़िलहाल कोई इरादा नहीं, लेकिन आगे जाकर ये भी हो सकता है। यानी नाज़रीन कि दिल्ली के आसपास के इलाके इस वक्त किसान पूरी तरह अपने घेराव में लेते हुए हर तरह की रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं तुर्की की और अमेरिका की। अमेरिका हमेशा से तुर्की की तरक्यात से जलता रहा है और तुर्की इस वक्त लगातार हर शोबे में तरक्की कर रहा है। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने वक्तन फ़ौक्तन सामने रखता ही रहता हूँ, उसमें तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अमेरिकी कांग्रेस ने जुमा के रोज़ महकमे दिफा का बजट बिल मंजूर किया है, जिसमें तुर्की के ख़िलाफ़ रूसी S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की ख़रीदारी पर पाबंदियों की मंजूरी के एक शिक भी शामिल है। सेनेट ने दिफाई बजट एक्ट की मंजूरी दी, जिसमें रूस और तुर्की के ख़िलाफ़ पाबंदियां भी शामिल हैं। जुमा के रोज़ सेनेट ने 2/3 से ज़्यादा अरकान ने $740 बिलियन के बजट के हक़ में वोट दिया, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालिफत की थी और उसको वेटो देने की धमकी दी थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता मंगल को इस बिल की मंजूरी दी थी, जिसमें सदारती वेटो को भी नाकाम बनाने के लिए काफ़ी वोट मिले थे। 4 ज़राए ने जुमेरात के रोज़ इस मामले से वाकिफ़ 2 अमरीकी अहदेदारों समेत तस्दीक की कि अमरीका गुज़िश्ता साल रूसी S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की ख़रीदारी पर तुर्की पर पाबंदियाँ आयद करने का इरादा रखता है। ज़राए ने यह भी बताया कि मौजूदा सदर ने तुर्की की नाराज़गी से बचने के लिए अनक़रा पर पाबंदियों से गुरेज़ किया। ताहम नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की ज़ेर क़ियादत आइंदा अमरीकी इंतज़ामिया तुर्की के मामले में ज़्यादा सख्ती का मुज़ाहरा करेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि पाबंदियों से तुर्की की दिफाई सनअत और इंतज़ामिया और उसके सरबराह इस्माइल दमीर को निशाना बनाया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीका में सदर जो भी बने वो इस्लाम मुखालिफ ही रहेगा। वो मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश ज़रूर करेगा। ये मेरी और आपकी चीज़ है कि एक नेता आता है, दूसरा नेता चला जाता है। एक सदर आता है, वो कम ख़राब होता है, दूसरा जो आता है उससे ज़्यादा ख़राब होता है। बज़ाहिर आपके मुंह पर तारीफ़ तो करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो इस्लाम और मुसलमानों के पीठ पर छुरा घोंपने की पूरी कोशिशें करेगा। ऐसे हालात में अगर ये कहा जाए कि अमेरिका में सदर जो भी बने, लेकिन उसकी पॉलिसी वही रहेगी जो यहूदियों की पॉलिसी इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के हमेशा से रही है, इसलिए कि वहाँ का कोई भी सदर हो वो कठपुतली होता है यहूदियों का। इस बात को हम लोगों को हमेशा अपने पल्लों से बांध लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम लोग जज्बात में आकर के कुछ ख़बरों पर अपनी खुशी का इजहार करने लगते हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका का सदर जब भी कभी कोई बदलेगा तो इस बात को हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो कठपुतली रहेगा हमेशा उन यहूदी कंपनियों की जो इस वक्त अमेरिका में पूरी तरह से माशियात पर दबाव बना हुए होते हैं, बल्कि पूरे माशियात पर जो लोग इस वक्त काबू किए हुए हैं अमेरिका में। बहरकैफ नाज़रीन, लंबा मौजू है, कभी इस पर गुफ्तगू होगी। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली खबर का। टाइम मैगज़ीन की बात करेंगे। टाइम मैगज़ीन इस वक्त फ़िलहाल कुछ सालों से आप इस तरह की मीडिया को चाहे ज़्यादा अहमियत ना देते हो, इसलिए कि ये एक किस्म का गोदी मीडिया हो चुका है और वो वही ज़बान बोलता है जो मरकज़ी हुकूमत बोलने की कोशिश करता है या उसके दिफाई चीज़ें पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद टाइम मैगज़ीन का सफ़ा और उसका अगला सफ़ा हमेशा से बहुत ख़ास अहमियत का हामिल रहा है। जो अखबारात पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी मैगज़ीन्स पढ़ने के जो आदी हैं, उनको इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। ये तो सभी जानते हैं कि 2020 सेहत के एतबार से इंतहाई ख़तरनाक और तबाही वाला साबित हुआ। अब टाइम मैगज़ीन ने 14 दिसंबर 2020 का कवर सफ़े अव्वल को जारी किया है, जिसमें 2020 को बदतरीन ज़ाहिर करने के लिए कवर पर 2020 लिखकर रेड क्रॉस यानी X का निशान लगा दिया है। साथ ही नीचे में लिखा गया है अब तक का बदतरीन साल। ये हम नहीं कह सकते, मुसलमानों का ईमान नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसलमानों को हमेशा से कहा गया है कि ज़माने को किसी भी हालत से आपको बुरा भला नहीं कहना है। लिहाजा लेकिन टाइम मैगज़ीन और सहाफ़त एतबार से और दुनिया की तबसरात एतबार से तनक़ीदी जायज़ा लेते हुए टाइम मैगज़ीन ने इस साल को बहुत बदतरीन साल कहा है। काबिल गौर बात यह है कि 100 साल में सिर्फ 5वां मौका है जब टाइम ने
मैगज़ीन के कवर पर रेड क्रॉस का निशान लगाया है और किसी भी तस्वीर को नहीं लिया। अगर टाइम मैगज़ीन की तारीख पर नज़र डालें तो पहली मरतबा 1945 में, यानी 75 साल कबल, जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की मौत हुई थी तो उसको निशानजद करने के लिए रेड क्रॉस का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बात, 2003 में इराक जंग शुरू होने पर रेड क्रॉस लगाया गया। तीसरी बात साल 2006 में अमरीकी फ़ौज के ज़रिए इराक में अलकायदा लीडर अबू मुसअब अज़्ज़रक़ावी की हलाकत के बाद रेड क्रॉस का निशान लगा। और चौथी मरतबा साल 2011 में उसामा बिन लादेन के कत्ल के बाद मैगज़ीन ने रेड क्रॉस का इस्तेमाल किया था। और अब ये 5वीं मरतबा है कि 2020 के आखिर में रेड क्रॉस का निशान लगाए जाने के ताल्लुक से टाइम ने वाज़े किया है कि ये एक बदतरीन साल के खात्मे की अलामत है, लेकिन इस मुहलिक वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लड़ाई का इख्तिनाम नहीं है। अपने कब्ल के 4 रेड क्रॉस वाले शुमारों में भी उन्होंने कुछ इस तरह की वजाहतें पेश की थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये रेड क्रॉस लगाना और किसी साल को या ज़माने को बुरा भला कहना, ये इनके एतबार से मुमकिन है कि जो है वो कहें अपने सहाफ़ती तबसरे के एतबार से, लेकिन बहैसियत मोमिन मेरा और आपका ईमान इस बात पर है कि अच्छे और बुरी तकदीर पर हम ईमान रखते हैं। जो भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ आती है, आसमानी फ़ैसले होते हैं, अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। मुक़द्दर में जो लिखा है वो हो कर के रहेगा, वो चाहे अच्छा हो या ख़राब। इसलिए ज़माने को बुरा भला कहना एक मोमिन की शान नहीं है और ये उसका ईमान भी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे चलते एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखूं, और वो ख़बर ये है कि अब तक किसानों की इस तहरीक में 11 किसान भाइयों की मौत हो चुकी है और इसी को लेकर के राहुल ने ट्वीट भी किया है। ये ख़बर आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हिंदी में आ रही है। किसान तहरीक को 17 दिन हो चुके हैं और हुकूमत और किसानों की बातचीत ताअत्तुल का शिकार है। दरियास्ता मुतअद्दिद किसानों के दम तोड़ने की खबर आ रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने खबर शेयर की जिसके मुताबिक मुजाहरा करने वाले 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, ज़रई किसानों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी कुर्बानी देनी होगी। तो नाज़रीन, इस तरह हर तहरीक में लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन हर दरम बीजेपी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा महसूस होता है। बहरकैफ नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम के प्राइम टाइम में कुछ और अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात और तबसरे के साथ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सी